बल्ले बिया सुरदू बायो पढ़ाई दिए असि भी 8 साल अपलोड नहीं होना चाहिए बैटिंग की है, जैसा कि आपने कुछ क्लिप देखी होगी यहाँ पर इस हादसा में कैप्चर किए हैं वो खूबसूरत मोमेंट्स, और उसके बाद मान साहब बॉलर थे खामोश हो जाएगा वो अच्छा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, आज है हमारा सेकंड डे ऑफ स्पोर्ट्स। तो आज क्रिकेट का फाइनल है और इसके अलावा बाकी के भी बहुत सारे इवेंट्स हैं और कल्चरल फेस्टिवल भी होने जा रहा है स्टूडेंट्स का। तो हम चलते हैं जी ज़रा GCG गुजरांवाला, तो वहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और हम लोग सब में इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ले जी नाज़रीन, हम पहुँच चुके हैं जी GCG गुजरांवाला, उसके मेन गेट पर। तो चलते हैं अंदर। लो जी, हमारी टीम फाइनल के लिए ट्रैक सूट में, और मैं देखिए किस कपड़ों में आया हूँ। मैं अभी कपड़े बदल लूँगा। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह जी विन विन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज पूरी तैयारी के साथ आए आमिर साहब, रावत साहब और माशाल्लाह आज कल्चरल डे के साथ आए हैं। आज सर का बन आज हमने अपनी वीडियो और इस से दिखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, मैं ट्रैक सूट आ गया। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। इंशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी। कैसी बैटिंग कराएंगे? चलो जी, आर्ट्स की बैटिंग। ये हमारे साथ पिच एक्सपर्ट है जी डॉक्टर शहजाद महमूद साहब। हम इनसे पिच रिपोर्ट लेंगे आज। तो बताएंगे जी पिच का आज कैसा जो है वो नेचर रहेगी। सर ये पिच जो है देखिए आपको क्रैक्स नजर आ रहे हैं, ड्राई पिच है और थोड़ी सी ग्रासी भी है, और ये जो इसमें क्रैक्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये पिच जो है ये फास्ट बॉलर को उस वक्त सपोर्ट करेगी जब फास्ट बॉलर गुड लेंथ के ऊपर बॉलिंग करेगा। सही। अगर वो गुड लेंथ पर बॉलिंग नहीं करता, आगे बॉल फेंकता है या पीछे फेंकता है, फिर उसे छक्के पड़ने के चांसेस है। तो सर एक्सपेक्टेड टारगेट आपके जहन में क्या हो सकता है? अगर आप पता चलेगा टास बिन कितने किया है जी? आर्ट्स ने, तो ये सर तकरीबन 120 प्लस है। 120 प्लस 6 ओवर्स में, 6 ओवर, इसका मतलब बैटिंग पिच चाहिए। बैटिंग सही है जी। चलें जी, देखते हैं फिर क्या होता है। तो हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। रिजवान रसूल साहब बाउंड्री पे खड़े हैं।
So Hassan Shah is ready to deliver the first ball of the innings. So left arm fast, Hassan Shah. Gujranwala Express running from the pavilion end and deliver the first ball. Very good, but it's wide. So let's see how the Hassan Shah performs today. So here is one of the attacking bowler of the sides comes and again wide ball. So you can see the pressure of the final on the face of the Hassan Shah, but he's a very good bowler and will manage his lines very soon. That's great. That's great ball. Very good delivery. Come again and again. Oh, what a delivery. Only a single. So the first run from the bat of Art's team. Now the Wasim Noor will face the Hassan Shah. So he is ready to face the Hassan Shah. Hassan Shah delivers and the first six of the inning. What a shot, what a shot. What a beauty from the Wasim Noor bat. And the ball flies over the head of the Rizwan Rasool at the long off, and no chance for the Rizwan Rasool to save the boundary. Abu Siddiq signals 6 runs, standing as umpire. The last ball of the Hassan Shah is over. He comes and again very good shot, but straight to the fielder Mirza Zohaib Beg. Mirza Zohaib Beg is very good fielder. He throws back to the Hassan Shah. 1 run is added in the score. The total score is 11 at the end of first over. Now the right arm fast, Hasnan Farooq from physics department will start the second over, and he started with the great bouncer. What a delivery, what a delivery, what a bouncer. Wasim Noor is claiming for the no ball, but it's fair ball. So comes again Hasnan Farooq. Oh, very good delivery. He hits the batsman ribs. So batsman is in serious trouble. So you can see the pressure of the final on the batsman. What a delivery by the Hasnan Farooq, very fast. Dr. Muhammad Ilyas, the captain of the science team, is at deep point, encouraging and packing up his fielders and his bowlers. So let's see how their bowlers perform today. Hasnan Farooq running again from the pavilion end. He reaches and then the delivery. What a delivery again! What a great delivery! Hasnan is in the great form. He is performing very well and delivering the ball with a great speed and effectiveness. Aamir Shazal at long on, and the Hassan Shah is waiting for his next over. He is watching Hasnan Farooq, which is running toward the pavilion end, and he delivers and again a great bouncer. What a speed of the Hasnan Farooq today. So he is damaging and distracting the batting of the Arts with his great speed and bouncers. So end of the second over. Now the Hassan Shah is coming again for the second over. He delivers to the Wasim Noor and a ball in the rear. So there's the chance of the catch. Well, Hassan Shah is already. Oh, it's dropped. It's dropped. Hassan Shah drops the catch and drops the match, I think, because Wasim Noor is the main batsman, is the main player of the Arts team. So it's a very, very great loss. So he drops the catch. You can see the sunlight in the eyes of the Hassan Shah, and he fails to catch the match. But I think it was the pressure of the final which comes in the eyes of the Hassan Shah. He comes again and Wasim Noor. So Wasim Noor, the great shot. Again the 6 runs. So you can now imagine how Hassan Shah has provided the opportunity to Wasim Noor by dropping his catch. He is coming in and again is a very long shot. So Wasim Noor is taking the full advantage of the drop catch. So you now can imagine what was the importance of that catch. So signal again 6 runs by the Babar Sadiq. Hassan Shah comes again and he delivers the ball to the Wasim Noor, and Wasim Noor again is a great shot and another 6. So what a performance by the Wasim Noor. Last ball of the Hassan Shah is over and he comes again and again there is the boundary. 4 runs, 46 runs at the end of the 3 overs, 33 runs by the Hassan Shah over. Was change in the bowling and the change in the commentary box as well. So I hand over the mic to the Urdu commentator.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर रज़ा साहब आए हैं अब बॉल करने के लिए। पहली बॉल उन्होंने की और ये वाइड बॉल की, उनके ऊपर भी लगता है फाइनल का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा। सेकंड बॉल और वसीम नूर ने उठा दिया, वसीम नूर ने उठाया लेकिन बॉल और मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री हो गई। सो ये रन रोका जा सकता था, इसको रोका जा सकता था, बट आमिर शहजाद भी फाइनल का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और उन्होंने बॉल मिस कर दिया और बॉल उनसे आगे सीधा बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया। हसनैन फारूक बॉल वापस लेकर आएंगे। ऐसा नजर साहब आए, दोबारा से बॉल की और वसीम नूर ने अगेन एक दफा फिर से ऊंचा शॉट खेला जो रिजवान रसूल के सर के ऊपर से होता हुआ छक्के की तरफ चला गया। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं जी, जो हसन शाह ने कैच छोड़ा था, जो वसीम नूर है उसका पूरा भरपूर फायदा उठा रहे हैं और उनको ये महसूस करवा रहे हैं कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है फाइनल मैच के अंदर एक मेन बैट्समैन का कैच छोड़कर। डॉक्टर इलियास ने फिर से गेंद थमाई है हुसैन फारूक को, क्योंकि वही एक मेन बॉलर हैं जो कि स्कोर रोक रहे हैं। तो वाए भागते हुआ एम्पायर के पास पहुंचे लेकिन ये ऊंचा शॉट और उनको भी छक्का पड़ गया। सो अब बैटिंग जो है वो काफ़ी धमाके से और धुआंधार हो रही है आर्ट्स की टीम की तरफ से। नए बॉलर यानी तारिक साहब ने बॉल की और उनका बॉल भी वसीम नूर साहब ने ग्राउंड से बाहर फेंक दिया। एक और ज़बरदस्त किस्म का छक्का वसीम नूर की तरफ से। वसीम नूर छाए हुए हैं और वो किसी भी बॉलर को अब खातिर में नहीं ला रहे, हर एक बॉलर की अच्छी खासी पिटाई कर रहे हैं। बाबर सदीक साहब की मेरे ख्याल से बाजू थक गए होंगे, छक्के दे के तारिक साहब आए, दोबारा से बॉल की और आखिरी बॉल था ये और लास्ट बॉल पर भी नहीं की, लास्ट बॉल पर भी एक ऊंचा लंबा छक्का वसीम नूर की तरफ से। वसीम नूर नॉट आउट रहे हैं और उन्होंने छक्कों की बारिश कर दी है साइंस टीम के ऊपर और एक बहुत बड़ा टारगेट जो है उन्होंने वो दे दिया है अब आर्ट्स की टीम ने। और ये एक्सपेक्टेड, जैसे कि हमें डॉक्टर शहजाद महमूद ने हमें बताया था कि 120 प्लस हो सकता है, तो देखिए उनकी प्रेडिक्शन कितनी सच्ची साबित हुई। वेल प्लेड वसीम साहब, वेल प्लेड। आपने कैच छोड़ने का भरपूर फायदा उठाया। कैच ड्रॉप होने का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। सेकेंड इनिंग का आगाज़ हुआ जा रहा है। सो जमील यूसुफ जो कि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, साइंस की टीम के मेन बैट्समैन हैं, ओपनिंग करते हैं और उनके साथ यानी आमिर शहजाद साहब फिज़िक्स डिपार्टमेंट से, दोनों ही ग्रेट हिटर हैं, ग्रेट बैट्समैन हैं। तो वो जा रहे हैं अब स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। सो नुमान आबिद भागते हुए आए फर्स्ट ओवर करने के लिए, पहली बॉल की और पहली ही बॉल पे आमिर शहजाद ने बॉल को ग्राउंड से बाहर फेंक दिया है। ये 12 रन होने चाहिए, इतना लंबा छक्का मारा है आमिर शहजाद ने और उनकी जो आपको नज़र आ रही हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो उनका माइंड बना हुआ है, माइंड सेट करके आए हैं कि हम लोगों ने आज छोड़ना नहीं है और छक्के पे छक्के मार के ये मैच जीतना है। सेकंड बॉल आई और ये मिस कर गए आमिर शहजाद, वो बहुत मायूस लग रहे हैं क्योंकि ये आई थिंक वो बिल्कुल सही थे कि छक्का मारने वाली बॉल थी लेकिन उनसे मिस हो गई और वो बहुत मायूस हुए हैं अपने इस बॉल को मिस करने से। एनीवेज जी, अब 100 ओवर हो चुका है और साइंस ने पहले ओवर में 10 रन स्कोर किया है। ख्वाजा जवाद साहब आए हैं अब दूसरा ओवर करने के लिए, कैप्टन हैं आर्ट्स की टीम के, ऑलराउंडर हैं और इनको बैटिंग तो नहीं मिल रही लेकिन अब बॉलिंग के अंदर अपने जादू जगाने के लिए आए। भागते हुए जमील यूसुफ, उन्होंने बॉल की और जमील यूसुफ मिस कर गए। जमील यूसुफ की टांगों पे गेंद लगी, सेकंड बॉल और सेकंड बॉल पे उन्होंने जमील यूसुफ को बोल्ड कर दिया है। जमील यूसुफ फाइनल के अंदर कुछ भी स्कोर नहीं कर सके, फाइनल का प्रेशर उनके ऊपर भी दिखाई दिया और वो 0 स्कोर के ऊपर 0 स्कोर पर आउट हो गए। बहुत बड़ी जो है वो विकेट हासिल की है ख्वाजा जवाद ने, उनकी खुशी वाकई जो है वो बनती भी है और देखने को आपको नज़र आ रहा है कि सारे खिलाड़ी जो है वो यही समझ रहे हैं कि शायद उन्होंने जमील यूसुफ को आउट करके मैच ही जीत लिया है, क्योंकि जमील यूसुफ मेन बैट्समैन थे साइंस की टीम के। सेमीफाइनल में उन्होंने छक्कों की बारिश की थी, छक्कों की बरसात की थी, लेकिन आज फाइनल के अंदर वो कोई स्कोर नहीं कर पाए। सो इसी वजह से ये बहुत
बड़ी कामयाबी है। ख्वाजा जवाद आए दोबारा से, नए बैट्समैन हैं, सो नए बैट्समैन को नहीं लेकिन आमिर शहजाद साहब को उन्होंने बॉल की और ये बॉल बहुत ज़्यादा विकेटों के करीब से गुजरी है। इसी वजह से ख्वाजा जवाद साहब का आप एक्शन देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बोल्ड होने के करीब थे, आमिर शहजाद बच गए हैं। अगली बॉल के लिए ख्वाजा जवाद साहब भागते हुए अंपायर के पास पहुंचे, बॉल की और आमिर शहजाद साहब ने पहली बाउंड्री लगा दी है जी। ये फर्स्ट 4 रन जो है जी इनिंग में, जो आपको साइंस की टीम में नजर आ रहे हैं। नमान अभी सब आए भागते हुए और बहुत अच्छा यॉर्कर, टिपिंग यॉर्कर, आप लोगों को मैं रिप्ले में दिखा देता हूँ। ये देखें कितना अच्छा बॉल, बिल्कुल भी प्लेबल नहीं था, बिल्कुल भी खेलने के काबिल नहीं था, तो हुसैन फारूक कुछ नहीं कर सके उस बॉल पे। माना भी सब आते हुए अंपायर के पास पहुंचे, बॉल की और ये बॉल पीछे गया और ये बाउंड्री हो गई है। अच्छा शॉट था आमिर शहजाद का, ये देखे उन्होंने इसको क्लिक किया और ये सीधा बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया। 4 रन का और इजाफा साइंस की टीम में। साइंस को इसी तरह से शॉट्स खेलना पड़ेंगी, बड़ी शॉट्स लगाना पड़ेंगी, छक्के मारने पड़ेंगे, चौके मारने पड़ेंगे। ख्वाजा जवाद साहब आए हैं बॉल करने के लिए, हुसैन फारूक उन्होंने बॉल की और उन्होंने बॉल को उठाकर बाउंड्री लाइन की तरफ भेजा और ये लंबा छक्का मारा है हुसैन फारूक ने। जैसे मैं कह रहा था कि ये ज़रूरत है अब उनको हर एक ओवर के अंदर बाउंड्रीज की, छक्कों की, चौकों की। और ये देखें कितना अच्छा शॉट था, उड़ता हुआ गया और ये लॉन्ग ऑन पर कोई भी खिलाड़ी उसको पकड़ने में कामयाब नहीं हो सका। बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद पड़ा और अंपायर का इशारा 6 रन। अगले बॉल के लिए अब भागे हैं, ख्वाजा जवाद साहब आए हैं, बॉल की है और ये बॉल मिस की। लेकिन ये दोबारा से देखें एक और बाउंड्री हो गई है, एक और बाउंड्री हो गई है। ये जो है जी एज होकर पीछे बाउंड्री हो गई। अब आएंगे जी नए बॉलर मुदस्सिर साहब ने आके बाउंस मारा है, पता नहीं कौन सा उसका निकाला है, शायद बैटिंग नहीं मिली। और देखें ये कितना ज़्यादा खतरनाक बाउंसर तुम्हारा बगैर किसी जो है वो अब खप्पे के, और इस वजह से ये नो बॉल है जी, फ्री हिट है जी। आमिर शहजाद साहब फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाया उन्होंने और उन्होंने बॉल को फेंक दिया है ग्राउंड से बाहर। तो फ्री हिट पर एक्सपेक्टेड था जो आमिर शहजाद साहब ने किया है जी, छक्का मारा है और अंपायर का इशारा कि 6 रन। बाबर सिद्दीक साहब आज बाजू उठा के थक गए हैं, कभी आर्ट्स की टीम के लिए, कभी साइंस की टीम के लिए। दरअसल साहब आए, आमिर शहजाद को बॉल की और अगेन आमिर शहजाद साहब पूरा गुस्सा उतार रहे हैं दरअसल साहब पर। एक और लंबा छक्का जो कि आपको लॉन्ग ऑन पे नजर आ रहा है। ये देखिए तो ये मिड ऑन पे बल्कि बहुत लंबा छक्का उन्होंने मारा दिया आमिर शहजाद साहब ने, दरख्तों के बाहर से गेंद उठा हुआ। पता नहीं कितने बॉल घुमाएंगे आमिर शहजाद साहब। दरअसल साहब आए, बॉल की और ये ऊंचा हवा में गया और ये और कैच हो गया। ये देखिए मुजम्मिल साहब जो है जी स्टैट डिपार्टमेंट, कभी उन्होंने कैच नहीं पकड़ा लेकिन आज देखिए कैच पकड़ लिया। सो ये देखिए इत्तेफाक से हुआ, तुक्के से हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी और साइंस की टीम के लिए बहुत बड़ी मूवमेंट। साइंस की टीम के साइंस की पवेलियन की तरफ गए थे और उन्होंने देखे इशारा किया था और मिर्जा ज़ुहैब बेग साहब ने बैट से उनको बॉल किया कि अगर इस तरफ दोबारा से आए तो तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। रौनक है नहीं ये कॉलेज की, हर डिपार्टमेंट की रौनक है। डिपार्टमेंट इनका बॉटनी है लेकिन कभी ये आपको केमिस्ट्री में मिलेंगे, कभी ये ज़ूलॉजी में मिलेंगे, कभी ये फिजिक्स में, पूरे कॉलेज में आए। मुदस्सिर साहब ने बॉल किया और उन्होंने उठा लिया, जो बॉल साहब अपने आप ही बॉल को हिट किया और ये बच गए हैं, ये कैच से बच गया। इकबाल जुराज साहब को ज़रा देख कर खेलना पड़ेगा, लेकिन अब मौका ऐसा है कि क्योंकि स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक और फनी मूवमेंट, प्रोफेसर इकराम फयाज साहब को पवेलियन से अंदर बुलाया गया है एज इम्पोर्टेड बॉलर, क्योंकि ये इम्पोर्टेड तो है ही लेकिन इम्पोर्टेड बॉलर इस वजह से कि ये टीम का हिस्सा पहले नहीं थे, प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे। और अब ये देखिए अंपायर भी और वसीम नूर साहब भी ये पूछ रहे हैं कि डॉक्टर इलियास साहब से कि क्या आप लोगों को इस पर एतराज़ तो नहीं है कि एक जो है वो सब्स्टिट्यूट को हम लोग बीच में ले आए। तो उन्होंने कहा जी कोई एतराज़ नहीं।
सो इकराम साहब ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बॉलिंग करना चाहिए थी इकबाल जलाल साहब को। उन्होंने इकबाल जलाल साहब को बॉल की और इकबाल जलाल साहब ने मिड ऑन की तरफ खेला, सिर्फ एक ही रन बन पाएगा। सो अब दोबारा से इकबाल जलाल साहब फेस करेंगे इकराम फयाज साहब को। इकराम फयाज साहब अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इकबाल जलाल साहब को आउट करना चाहते हैं। उन्होंने बॉल की, इकबाल जलाल साहब ने उठा दिया और हवा के अंदर गेंद और मुदस्सिर साहब और विकेट छूटते छूटते पकड़ा गया और इकराम फयाज साहब जो चाहते थे वही हुआ। इकबाल जलाल साहब की विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। ये देखिए बहुत ऊंचा हवा में बॉल गया था और मुदस्सिर साहब ने अपनी आंखें अपनी नज़रें बॉल से नहीं हटाई। उनके हाथों में देखें बॉल गिरने के बावजूद दोबारा से पकड़ा गया और इस तरह से इकबाल जलाल साहब आउट हो गए। 0 स्कोर पर 1000 रुपए का इनाम। नए बैट्समैन हैं मिर्ज़ा ज़ुहैब बेग, बायोलॉजी डिपार्टमेंट से, बहुत ही मशहूर व मारूफ क्रिकेटर और काफ़ी लंबे लंबे छक्के लगाने के ये माहिर हैं। पिंच हिटर के तौर पर इनको खिलाया जाता है, लेकिन अब स्कोर बहुत ज़्यादा है, सिर्फ 2 या 3 बॉल्स बची हैं। देखें क्या करते हैं मिर्ज़ा ज़ुहैब बेग ने, और उन्होंने उम्मीदों के मुताबिक बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एक्सपेक्टेशंस थी लंबा छक्का मारा है इकराम फयाज साहब को। उन्होंने गेंद को दरख्तों के दरमियान में फेंका और एक लंबा छक्का देखने को नज़र आया। सो जाते जाते अब मिर्ज़ा ज़ुहैब बेग ने भी अपना हिस्सा डाला है छक्कों में और बाबर सिद्दीक साहब को अगेन अपने बाजू उठाने पड़े। ज़ेब साहब के लिए भी 1000 रुपए का इनाम राना रमजान साहब की तरफ से। 4 रन, चौके पे कोई इनाम नहीं है हमारी ऑडियंस की तरफ से। 1000 रुपया वापस लो। 44 रन इन 1 बॉल मिस की और ये बीट हो गए मिर्ज़ा ज़ुहैब बेग साहब और इस तरह से ये फाइनल मैच जो है वो आर्ट्स की टीम जीत चुकी है 43 रन से। बहुत बहुत मुबारक हो रही आर्ट्स की टीम को। तो चले जी अब इनकी सेलिब्रेशन देखते हैं। लो जी 80 8 साल आज तो पिया सुरदू ना सी बायो पढ़ाते हैं ना, ਅਸੀਂ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਆ ਬੱਲੇ ਬਾयो ਪੜਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ 8 ਸਾਲ मैन ऑफ द मैच है जी। इन्होंने लंबे लंबे छक्के लगाए थे, तो हम इनसे जरा पूछते हैं पिच कैसी थी, बॉलर कैसे थे। मैच था बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉलेज के कुलीग्स का मैच था और इस तरह की सरगर्मियां होती रहनी चाहिए। और बॉलर सही नहीं थे या आप ज्यादा अच्छे थे? आर्ट्स के बैट्समैन और बॉलर दोनों एक्सीलेंट और साइंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन टारगेट बहुत ज्यादा था, इस वजह से चेंज नहीं होता। चले सर मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से आपको। ख्वाजा जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, आर्ट्स के कैप्टन। तो इन्होंने आज का मैच, आज का फाइनल जीत लिया। हम इनसे इनकी राय पूछेंगे और इनकी टीम के बारे में और इनके बारे में भी पूछेंगे। जी सर, आपका क्या ख्याल है आज की जीत के बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, पिछले काफ़ी सालों से साइंस जो है वो विन करती आ रही थी। हाँ जी। तो इस दफ़ा हमने अज़म किया हुआ था कि इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा साइंस को हमने हराना है और हमने जीतना है। तो अल्लाह ताला ने करम किया, हमारे बैट्समैन जो है वो चले। वसीम नूर साहब ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, जैसा कि आपने कुछ क्लिप देखी होगी, हमारे साथ साहब ने कैप्चर किए हैं वो खूबसूरत मोमेंट्स। और उसके बाद मान साहब जबरदस्त बॉलर थे, खामोश हो जाएगा, वो अच्छा रहा। और साइंस की टीम जो उनके साथ बैड लग रही, उनके आज अभी जो बहुत शुक्रिया सर, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से।
पूरा हो ना रुको जरा, सब्र करो, अभी तो देखो सरप्राइज आपके लिए हाजिर है। अब देखें क्या होने वाला है। चले जी जरा, आगे जमीन यूसुफ साहब, आपको आपकी टीम को और कैप्टन इलियास साहब को 47 फॉर्म के तहत जिताया जाता है। आज की विनर है